Praise the Lord. It's so good to see everybody in church today. And I thank God for this special day that He has given us so that we can get together as a family and worship Him. Let us pray. Almighty Jehovah, great God, we honor you, we bless you, we thank you. We thank you for all the gifts that you have blessed us with, dear Father. We thank you for this seventh day, O Lord, and bless us to keep it holy and to be worshiping you on this day, Father God. We thank you for every member present here, O Lord. We praise you, we give you thanks. And Lord, we also remember those who are not able to come with us, be with us here today. Especially the sick members that are not able to come, Lord, we pray for your special blessing and special care for them, O Lord, so that they can get better and be with us. Dear Father, guide us and lead us and bless this message that I have prepared, O God, so that it falls in the good ground and brings fruit. Dear Jesus, guide me and lead me. In your precious name, amen. Our topic आज है envy, E-N-V-Y, envy. और हम जानते हैं कि छोटा वर्ड है, लेकिन जब envy आ जाती है हमारे दिल में तो अंदर खाली हो जाता है. हमारा सुख चैन सब छीन जाता है और हम व्याकुल हो जाते हैं. We become restless. और वो एक ऐसा चीज़ है जो हमारे दिल में हो जाता है तो फैमिली में टूट हो जाती है, चर्च में भी टूट हो जाती है, परिवार में, काम में. और ये क्यों पैदा होता, क्यों हमारे बीच में आता है? क्यों आता है? क्योंकि हम कभी कभी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते या कभी ले नहीं पाते हैं कि दूसरों का प्रमोशन होता है, दूसरों का बढ़ाई होता है, दूसरे अच्छा काम कर रहे हैं. और जब हम वो देखते हैं तो हमें दिल में दुख आता है और हम धीरे 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 हमारा जो जलन है उसकी तरफ जाने लगता है और हमारा जो दिल है वो व्याकुल हो जाता है, बेचैन हो जाता है. तो जेनेसिस 37 में मैं पढ़ूंगी और हम देखेंगे उसमें कि कैसे एक व्यक्ति के, एक भाई के लिए और बड़े बड़े भाइयों के दिल में कैसे एनवी उनके तुओस आया. तो Acts 5:31 में कहता है कि him had God exalted to be a prince and savior. This is said of Christ, but it was true of Joseph in these days. He thus becomes a beautiful type of a savior. इतना तकलीफ हुआ जोसेफ को, इतना दुख दिया गया, लेकिन वो परमेश्वर के विश्वास से हटा नहीं. ही ड्रिल रहा. और हमारा आज का रीडिंग है जो वो है जेनेसिस 37 3-11. जेनेसिस 37 3-11. हम कई बार इस किस्सा को सुन चुके हैं, इसमें सेमन सुन चुके हैं, लेकिन आज थोड़ा से अलग होगा. और 37 चैप्टर 37 में लिखा है, Now Israel, that means Joseph, now Israel is Jacob को Israel कहते थे, loved Joseph more than all his children because he was the son of his old age, and he made him a coat of many colors. And when his brothers saw that his father loved him more than all his brethren, they hated him, they envied him, and could not speak peacefully to him. See, जब उन्होंने देखा कि पिताजी ने छोटे को बहुत प्यार करता है और उनके लिए कोट बना दिया है, तो जेलसी डेवलप होगी घर में, भाई, एक छोटे भाई के लिए. और तब अब क्या होता घर में दो टेंशन होने लगता है, अब भाइयों के बीच में टेंशन होने लगता है. और आगे देखिए ये क्या करते हैं. And when his brethren saw that their father loved him more than his brethren, they hated him and could not speak peacefully to him. And Joseph dreamt a dream, and he told it to his brothers, and they hated him, or they envied him yet more. And he said unto them, Hear, I pray you, this dream which I have dreamt. For behold, we were binding sheaves in the field, and lo, my sheep arose and also stood upright. And behold, your sheaves stood around me and made obedience to bowed before my sheep. And his brothers said to him, Shall thou indeed reign over us, or shalt thou indeed have dominion over us?
and they hated him, or they envied him yet more for his dreams and for his words. And he dreamt yet another dream, and told this to his brethren, and said, Behold, I have dreamt a dream more, and behold, the sun and the moon and the 11 stars made bow to me. And he told it to his father and to his brethren, and his father rebuked him, because the father didn't like him telling them that. And he said unto him, What is this dream that thou dreamest? Shall I and your mother and thy brethren indeed come and bow down ourselves into this earth? And his brethren envied him, but his father observed the saying. The brethren envied him, but the father was watching over him. He must be thinking what this dream means. Even though he got mad, he got angry, but he started thinking what this dream meant. I would like to request everyone to please go home and read chapter 37, chapter 36, and you'll know the full story of Joseph and Jacob. God had exalted him. Joseph was a beautiful person. He was young and handsome, and he obeyed his father. He obeyed God. He trusted God. He lived according to God's will. And Jacob had 12 boys and a lot of girls. And Jacob was, I think, the youngest or the second youngest. Jacob loved his Joseph tenderly. बहुत प्यार करता था छोटे भाई से. होता है परिवार में जो सबसे छोटे होते हैं उनको सब कोई प्यार करते हैं, और कभी-कभी जो बड़े हैं तो थोड़ा जेलस हो जाते हैं, लेकिन सब अपने छोटे को जैसे प्यार करता है. तो यहाँ भी वही हुआ, और उसको ज़्यादा प्यार मिला, ज़्यादा टर्म. और पिताजी और उनको तकलीफ देने के लिए मीन करके नहीं, लेकिन उनके लिए जब कोर्ट बन गया तो ब्रदर्स जल उठे कि इनके लिए सब कुछ किया जाता है, व्हाई ओनली हिम नॉट मी, और उनको हेट करने लगे. द स्पेशल अटेंशन दैट द फादर वाज गिविंग देता था अपने पिता को, दैट प्रोवोक्ड older brothers to envy him more. They didn't want to talk to him. वो जलन इतना हो गया था कि they didn't want to have anything to do with him. The more the father showed his love towards Joseph, the more they envied him. पिता उसका बूढ़े के समय के बच्चा था. He was old when Joseph was born, and he loved him very much. क्योंकि बड़ों को तो उतना प्यार नहीं कर सकते ना, उनको प्यार दूसरी तरफ से दिखाता, लेकिन जो छोटा बच्चा है उनके लिए हम गोदी लेते थे, किस करते थे, उनके लिए चीज़ ला देते हैं. And the older brothers did not like this. Envy is such a strange and terrible thing. It can spring even from sincere love. कहीं हो सकता है, कितना भी अच्छा फ्रेंड्स हो, अगर किसी को प्रमोशन मिल गया है, क्या होता है, जलन हो जाती है, हम एनवी करने लगते हैं. किसी जो कोई अच्छा कपड़ा पहन के आया, कोई नीटली ड्रेस्ड अप होया, हमें वो जलन आ जाती है. कोई का बढ़ाई किया गया है, ऐसे छोटे छोटे चीज़ों में हमें जलन हो जाती है. I have gone through it many times. My girls, Dilkusha girls, were always envied by the other schools. और हमारे बच्चों को they wouldn't have anything to do with them. उनको hate करते थे. The school, they hated the school. Even my own Methodist schools. तो कभी-कभी मैं सोचती थी कि क्यों ऐसे करते, क्यों नहीं कोशिश करते हैं कि हमारे लेवल पे आ जाए. लेकिन हमारे बच्चे, हमारे टीचर्स जो थे, they worked hard to gain that respect or gain that reward. तो ये जो एनवी है, हम उससे दूर रहे, क्योंकि वो हमें धीरे धीरे अंदर हमारे खा जाता है. When Joseph told his brothers that he had a dream, he would rule over him, कि उनके ऊपर वो रूल करेगा, उनके ऐसे ड्रीम में देखा है. And he would overrule over them one day. They hated him even more. जब हमारे दिल में जब शांति नहीं है, जो और कुछ है, तो हम कुछ अच्छी तरह से कर नहीं पाते. We can't concentrate. सब छीन जाता है और हम तकलीफ में हो जाते हैं. Proverbs 14:30 कहता है, a heart at peace gives life to the body, but envy rots the bone. Envy rots the bone. जब हम लोग के जलन आ जाता है तो धीरे धीरे हमें बीमारी हो जाती है, हम कमज़ोर हो जाते हैं, और हमारा जो खुशी है, जो सुंदर चेहरा है, वो मुरझा जाता है. Envy went so deep, उनके दिल में इतना भारी जलन हो गया था, envy हो गया था कि they wanted to kill him. They wanted to kill him. खाली जलन के कारण, क्योंकि पिताजी उस बेटे को कितना प्यार करता था.
सभी को शायद प्यार किया होगा उस समय, लेकिन ये छोटा था और ये भाइयों को इतना लग गया कि दे वांटेड टू किल हिम, दे मस्ट। कितना जलन, कितना भारी जलन उनके दिल में होगा। They sold Joseph. Instead of killing him, they sold him to Egyptian traders. बेच दिया उसको, क्योंकि एक ने उससे कहा, जो थोड़ा प्यार करता था जोसेफ से, कि इसको मारे मत, अपना कपड़ा, अपना हाथ मत खून से गंदा करे, इसको हम गड्ढा में छोड़ते थे, क्योंकि वो सोचता था कि बाद में मैं आऊंगी और इसको यहाँ से निकाल ले जाऊंगा। लेकिन क्या हुआ, वो कहीं चला गया था, ये लोग उसको 20 पीसेस ऑफ सिल्वर से उन्होंने बेच दिया उसको। They did this to Joseph, but God was with Joseph. Joseph cried, he shouted, he yelled, but no, they didn't listen to him. They sold their brother for 20 pieces of silver. Kali 20 pieces of silver, they gave one child away, one of the brothers away, और not realizing कि माँ बाप के ऊपर क्या होगा, कितना तकलीफ सहेंगे। लेकिन उनका जो गुस्सा था, उनका जो जलन था, उनको बेचने से, उनको हटाने से वो चला गया उनके पास से। हम जीसस की ओर जब देखते हैं, जीसस वाज आवर सेवियर। कभी किसी को डांटा नहीं, कभी किसी के बुरा नहीं किया है, सब 3 लोगों को मदद करते गया। सिंपल हम्बल पर्सन, ही वाज लिविंग लाइक यू एंड मी। लेकिन उसको भी पीपल जलन किए। जब बड़ा क्राउड लोग उसके पीछे हो लगे, तो दे वे पीपल, लीडर्स जो थे, उनको जलन आए कि हमारे पीछे क्यों नहीं होते हैं, क्यों इस साधारण पुरुष के पीछे इतना लोग क्यों चल रहे हैं। दे envied him because there was a big crowd following him. तो हम कुछ अच्छा करते हैं, सभी को हम प्लीज नहीं कर पाते हैं। There are some that we cannot please, और वो पॉइजन लाने लगते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। हम जानते हैं कि जो एनवी है, एनवी जब हो जाता है, उसके पास कोई सीढ़ी नहीं है कि वो चढ़ के ऊपर से जाए या नहीं, वो पैदा हो जाता है जब हमारा दिल कपट से भरा होता है, जब हम दूसरों को ग्रहण नहीं कर पाते, उनके प्रमोशन को, उनके खूबियां को हम देख नहीं पाते, उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तब हमारे दिल में ये जलन आ जाता है। जब लीडर्स प्रभु यीशु मसीह को जब जलन के कारण उस प्लान करने लगे कि कैसे हम इसको हटाएं, कैसे इस ग्रुप को हम निकाले वहां से, और जब उन्हें पकड़वाया गया और जब पायलट के पास ले गया, तो पायलट भी जानता था कि इनका तो कोई कसूर नहीं, इट्स बिकॉज ऑफ एनवी दे आर गोइंग टू अरेस्ट जीसस। क्योंकि एनवी वाज ओनली वन रीजन दैट enabled them, made them hate Jesus. और फिर जब जूस देख नहीं सकते थे, they didn't want to see big multitude following Jesus, they were filled with envy and they could do anything to Jesus. शायद उसी समय से प्लान हो गया था कि इसको क्रूसीफाई करें, इसको हटा दें। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो एनवी है, जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे ऐसे लगा कि अच्छे अच्छे घरों में आता है, अच्छे अच्छे जगहों कामों में आता है, अच्छे अच्छे चर्चेस में आ जाती है। अगर पास्टर मिसेस खिलावन को प्रेस करे और किसी को और प्रेस करना था, तो शायद दिल में हो जाए, जलन थोड़ा आ जाए कि क्यों उसको, वो तो साधारण है, सच बात है, साधारण है, शायद उन्होंने कुछ अच्छा चीज़ मेरे में देखा होगा, इसीलिए प्रेस करती है। वी हैव टू थिंक लाइक दैट कि क्यों लोगों को प्रमोशन मिलता है, क्यों उन्हें प्रेस मिलता है, क्यों उनको सब लाइक करते हैं, उनमें कुछ खूबियाँ हैं, और उस खूबियाँ को हम खोजने की कोशिश करें ताकि वो हम में भी हो जाए, ना कि हम बस क्यों उसको मिला है, क्यों रंजनी को मिला है, क्यों नहीं उसको मिला, क्यों नहीं मेरे बेटे को मिला। और किसी बेटे को या कोई बच्चे को कुछ बढ़ाई मिलता है तो वो भी हमारे दिल में जलन आता है। अगर प्राइज मिल गया, अरे हमारा बच्चा तो इतना अच्छा पढ़ रहा था, क्यों उसको मिला, क्यों नहीं हमें मिला, क्यों क्यों क्यों, और वही जलन पैदा करता है। हम यहाँ जोसेफ के स्टोरी फॉलो करें एंड सी हाउ गॉड लेड हिम थ्रू ईयर्स ऑफ सफरिंग टू ब्रिंग हिज हीलिंग ऑफ हिज ब्रदर्स। यहाँ जब जो ब्रदर जो उनको बेच दिए थे, अब प्रभु यीशु मसीह जोसेफ के द्वारा काम कर रहा है, उनको हीलिंग दे रहा है,
कि जो इन्होंने इतना साल जो सफ़ा किया है उनके भाइयों के कारण, अब इनमें वो शांति, वो ताकत देता है कि अपने भाइयों को माफ़ करे. हीलिंग फॉर हिज ब्रदर्स. भाई जो आई थिंक वो लोग पछताया होगा जोसेफ को बेचने के बाद, और परमेश्वर चाहता था कि उनको चंगाई मिले, जो जलन था, जो कपट था, उन्हें निकाल दे. और अब देखते हैं कि कैसे परमेश्वर उनके दिल में ये हीलिंग लाता है. जोसेफ ओनली ट्रस्टेड द लॉर्ड. कभी कुछ बुरा नहीं किया उन्होंने, कभी किसी के विरुद्ध कुछ नहीं किया, लेकिन और किसी के विरुद्ध कंप्लेन नहीं किया. भाइयों ने उन्हें बेच दिया, पोटीफा की वाइफ उन्हें ब्लेम किया और फिर उन्हें जेल में रखा गया. ही नेवर ओपन्ड हिज माउथ टू कंप्लेन. परमेश्वर जब कुछ काम करता है हमारे बीच में तो अच्छाई के लिए करता है. ही वर्क्स अमंग दोज दैट लव हिम. कुछ भी हो जाए हमें, हम परमेश्वर को ना छोड़े. ही वॉज बिट्रेड, ही वॉज forsaken एंड ही वॉज forgotten. उसको बिट्रे किया भाइयों ने और फिर उसको जेल में रखा गया. they forgot about him. ये सब होने पर जोसेफ could have easily given up. वो फिर अपने धंधा में चला जाता है. Why? मैं इतना ईमानदार हूँ, इतना हार्ड वर्किंग हूँ, अब मेरे ऊपर इतना तकलीफ आया, क्यों? लेकिन उन्होंने कैरी ऑन किया, परमेश्वर से हटा नहीं. वो छोड़ना नहीं चाहता था परमेश्वर के, क्योंकि जानता था कि हिज हीलिंग, हिज लव, हिज पीस कम्स फ्रॉम गॉड. जो उनके पास जो बिटनेस थी, जो कड़वाहट थी, वो पिटी में नहीं बदलना चाहता था, वो फॉरगिवनेस चाहता था. टू फॉरगिव एवरीबॉडी दैट हैज डन हिम रॉन्ग. इवन इन द डार्केस्ट आवर्स जोसेफ ट्रस्टेड गॉड. हम लोग क्या करते हैं, कुछ थोड़ा तकलीफ आ जाता है, हम लोग भूल जाते हैं, प्रभु को छोड़ देते हैं और कुछ करने चले जाते हैं. लेकिन यहाँ पे आखिरी समय में, तकलीफ के समय में, जोसेफ ने परमेश्वर को नहीं भूला. He trusted Jesus. He was so trustworthy. He trusted the faithfulness of God. क्योंकि परमेश्वर के द्वारा उन्हें वो शांति मिलती थी. इतना कुछ होने पर भी वो चेष्ट नहीं छोड़ा, वो अपने परिवार को नहीं छोड़ा, लेकिन परमेश्वर को पकड़े रहा. उन्हीं को वर्शिप करता था, उन्हीं पर विश्वास करता था. उनका विश्वास तो शायद जैसे प्रभु यीशु मसीह का है. प्रभु यीशु मसीह भी कभी, प्रभु यीशु मसीह के हम जब देखते हैं तो कितना साधारण व्यक्ति था, कभी कोई उसके अगेंस्ट फिंगर नहीं उठा सकता था. इसी तरह जोसेफ था, उन्हें खाली केवल लोग जलन करते थे. दे हेटेड हिम फॉर हु ही वाज. कितना विश्वासी था, परमेश्वर उसको कितना प्यार करता था, वो अपने परमेश्वर को कितना प्यार करता था. इवन जब वो उसको ब्लेम किया गया, उसके पत्नी के साथ में बुरा व्यवहार करने के लिए, उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला कि ना मैं झूठ बोलती, मैंने नहीं किया. वो चुपचाप जेल चला गया. एंड ही वाज इन द जेल फॉर अ लॉन्ग टाइम. थ्रू द फियर ऑफ गॉड ही ओवरकेम मेनी ट्रायल्स एंड टेम्पटेशन. हम भी कर सकते हैं, अगर हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पे, सब कुछ पॉसिबल हो जाता है. वी कैन डू इट. हम हट जाते हैं, हम डर जाते हैं, लेकिन हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं. बोलने से नहीं, विश्वास करने से सब होता है. जब विश्वास करते हैं तो हम सब तकलीफ झेल सकते हैं. जोसेफ वाज रिवॉर्डेड फॉर हिज फेथफुलनेस. उतना फेथफुल था कि परमेश्वर ने उन्हें रिवॉर्ड दिया. 12 साल तक वो जेल में रहा, लेकिन बिकॉज ऑफ अनजस्ट इम्प्रिजमेंट, कसूर नहीं किया था, लेकिन बिकॉज ही वॉज अ लीडर, उसको सुनकर इनके जेल में छोड़ दिया गया. His only solace was that God was with him. Even in jail, anywhere he went, he knew that God was with him. He spent his 12 years in jail knowing that God was with him. He was imprisoned and tied up with iron chain. बांध के रखे थे 12 साल तक. लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि कितना अच्छा लड़का है, कितना ईमानदार है, कितना मेहनती है, तो he started helping inside the prison. परमेश्वर उनके साथ था. परमेश्वर हमारे साथ हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं. हम डर से भी बच सकते हैं, हम
जो काम हम कर नहीं सोचते हैं कि कर नहीं पाएंगे, अगर परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, इफ ही इज विद अस वी कैन डू एनीथिंग. When God's appointed time came, in 1 hour, जब उसका समय आया, उसको छुटकारा मिलने का समय आया, 1 घंटे में Joseph was brought out of prison and he was made the ruler of the land. From prison, as a prisoner, he was made a ruler of the land. He was made a governor. जब जो दो साथी उनके जेल में थे, जब उन्होंने सपना देखा और जोसेफ उनको उनके सपना के मतलब बताया, तो उनको जैसे जो मतलब जोसेफ ने बनाया वो सच हो गया था. और जब उनके फिर उसी काम में लग गए, और जब राजा ने सपना देखा तो किसी ने उनको ट्रांसलेट नहीं कर सका. तब इस जो बटला था उनको याद आया और वो जाकर राजा से कहा कि एक जेल में है जोसेफ, वो आपको मदद करेगा. और जोसेफ को जैसे लाया गया, जोसेफ उनके सपने को ट्रांसलेट किया, बताया उसके मीनिंग को, और उनके नया कपड़ा पहना के उन्हें गवर्नर बना दिया गया. From the jail he became the ruler. Joseph revealed his heart before his brothers. भाइयों ने जब उनके देश में खाना कमती हुआ, उनको खाना चाहिए था, भोजन चाहिए था, तो वहाँ से आए जोसेफ के पास भोजन लेने के लिए. और यहाँ पर जोसेफ तो जान गया कि ये हमारा भाई लोग है, लेकिन the brothers did not know that it was Joseph. They came and bowed before him. Bowed before him. तो ड्रीम जो देखा था वो सच हो गया. He dreamt that you are bowing before me. Your bundles was bowing before me. और यहाँ पे सचमुच में ये उनके सामने आए और उन्हें बाव किया और वहाँ से भोजन लेके गए. Do not be angry with yourself. जब उन्हें पता चला कि मेरा भाई हमारे he is Joseph, जिसको हम लोग बेचा था, he is the one that is in charge, he is a governor. शौक लग गया, हो गया, अरे इसके तो हम लोग बेच दिया था, we thought कि he was कहीं slave होगा, लेकिन यहाँ तो ये गवर्नर है. Do not be angry. और भाइयों से कहता कि गुस्सा मत करो. Don't be angry. कौन भाई ऐसे कहेगा जिनके साथ इतना बुरा हुआ, फिर अपने भाइयों से कहता कि मत डरो. कितना सुंदर बात है. केवल परमेश्वर अगर दिल में है, then only you can say that. और अपने आप तो हम बोल नहीं सकते हैं. For God sent me before you to save your lives. परमेश्वर ने, ये सब प्लान था परमेश्वर का, जो उन्होंने मुझे आपसे पहले भेज दिया यहाँ, ताकि हम मैं प्रिपेयर करूँ और आपको मदद करूँ, आपके जीवन को बचाऊँ. It was not you that sent me here. It was God that did it. परमेश्वर का मर्जी था उसमें, इसीलिए उन्हें वहाँ भेजा गया. This is the secret of how Joseph was able to go through the many years of misery without bitterness. परमेश्वर के द्वारा he was able to bear all the difficult times that he went through. He saw God in all that he went through. परमेश्वर को देखा, जो कुछ हुआ उसके साथ, बुरा हुआ, अच्छा हुआ, खराब हुआ, वो परमेश्वर को उसमें देखा, सब कुछ परमेश्वर को देखा. Acts 5:31 कहता है कि him had God exalted with his own right hand and to be the prince and savior. Joseph was made a prince and became a savior of Egypt. उस सेव किया लोगों को, क्यों? Because he did what he was supposed to do. भोजन बटोरा, और जो भूखे मरते थे उनको भोजन पहुंचाया और सभी तृप्त हुए. Joseph assures him of his unchanging love and kindness to them. अपने भाइयों को गले लगाया, रोया, उनको दिलासा दिया और उनको वादा किया कि मैं, हमारा जो रिलेशनशिप है वो बना रहेगा और मैं परमेश्वर के भक्त हूँ और I love you all. Just like Lord Jesus, जितना उसको सताते थे, इवन क्रॉस पे जब टंगा हुआ था तो वहाँ से कहता, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Forgive them. कौन ऐसे कहेगा? हम बोलेंगे, हम कहेंगे, लेकिन पुत्र ने अपने पिता से कहा कि माफ करो उन्हें. कितना सुंदर बात है, कितना गहरा बात है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर गया और फिर हम ही को माफ किया. Joseph was like Lord Jesus. He kept forgiving, he kept forgetting, or kept working hard for all that he was supposed to do. Joseph is seen here as sent
depicted. जोसेफ को हम देखते हैं कि उसको परमेश्वर ने भेजा था. He was sent, and he was true a brother. He was a brother, true brother. भाइयों ने इतना उनको किया, लेकिन he forgave them. A great sufferer. कितना दुख सहा, अपने पिता के घर पे दुख सहा, और फिर जब यहाँ इजिप्ट में आया तो जेल में उतना दिन दुख सहा. But he was sinless. कोई दुख पाप नहीं किया था. Yet he was suffering. A mighty prince at the right hand of the king, a powerful savior. God savior नहीं, peasant savior हुआ. सब कुछ किया, लोगों को कितना सेव किया. उनके काम से गवर्नर भी, जो लीडर था, जो मिनिस्टर था, वो कितना खुशी हुआ, और परमेश्वर ने इन्हें आशीष दी. A powerful savior suffering before glory. अपने लिए कुछ अच्छा नहीं चाहता था, बढ़ाई नहीं चाहता था, प्रेज नहीं चाहता था, but he wanted to help people. Joseph was imprisoned, then he became a prince. जेल से निकाल के उसको प्रिंस किया गया. शायद लोग शक खा गए कि अरे ये तो जेल में था, जेला है, और फिर इसको यहाँ पे प्रिंस बना दिया गया. We all wish to avoid the tragedies of life. हम सब चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं आए. तो ये तकलीफ कैसे दूर होगा? जब हम परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखेंगे, जब प्रभु हमारा अगुवाई करेगा, जब प्रभु के ऊपर हम सब कुछ छोड़ देते हैं. But when we do face difficult times, जब हम तकलीफ में होते हैं, our greatest help comes from trusting God. हम अपने पति पत्नी को नहीं ट्रस्ट करते, अपने फैमिली को नहीं ट्रस्ट करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, लेकिन जो शांति, जो रिजल्ट्स हमें परमेश्वर पर ट्रस्ट करने से मिलती है, वो और कोई नहीं दे सकता है. तो let us keep holding on to our God, and our hope, a sure hope, will come from Him. As Joseph was seen and loved, so are we. परमेश्वर हमें प्यार करता है. बुराई और भाइयों को भी परमेश्वर प्यार किया, इतना जोसेफ के बीच में किया, जोसेफ के लिए किया. God still loved them. God wanted them to be forgiven. And जोसेफ के द्वारा उन्होंने काम किया और भाइयों को forgive किया. As Joseph was seeing the Lord, so are we. We might be feeling ignored. हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि हमें क्यों नहीं कोई पूछता है, क्यों नहीं हमें बढ़ाई करता है, क्यों मेरा पहचान नहीं होती है. कभी कभी हम लोग पीपल हमें एनवी कर लगते हैं, और कभी कभी हमें रिजेक्ट कर देते हैं कि अरे ये क्या कर पाएगी, उसके पास तो कुछ नहीं, ये बेकार है, ये ऐसे वैसे कर देती है. लोग ऐसे बोलते हैं, फ्रेंड्स ऐसे बोलते हैं, परिवार में बोलता है अरे ये तो बेकार है, ये लड़का कुछ नहीं करी. तो लड़का आगे बढ़ेगा कि वो तो यही सोचेगा कि मुझे तो कहते हैं कि मैं बेकार हूँ, तो मैं बेकार हूँ. लेकिन हमें सब दिन परमेश्वर के डर से रहना है, और जो परमेश्वर चाहता है वही हम करें. क्योंकि हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पिता हमें देखता है. जो कुछ हम करते हैं पिता हमारा देखता है. जो कुछ हम सोचते हैं ही नोज. जहाँ हम जाते हैं, जिसके लिए हम कुछ करते हैं, प्रभु यीशु मसीह जानता है. और हमें परमेश्वर के सहायता लेकर इस दुनिया को फेस करना है. हमारे पास जो फीलिंग्स है हम उसी को दे सकते हैं, क्योंकि हमारा शांति, पीस विल कम फ्रॉम हिम. ही स्पीक्स द वर्ड दैट ब्रिंग्स अस लाइफ. बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो कितना शांति मिलती है. समय बिताओ बाइबल पढ़ने में और समझने की कोशिश करो. एंड एवरी वर्ड इन द बाइबल इज गॉड सेंट, इट्स ट्रू, फेथफुल. ट्रस्ट हिम होल हार्टेडली, क्योंकि उसी को हम ट्रस्ट करते हैं. ही विल नेवर बिट्रे अस. माय फैमिलीज विल डू, आवर फ्रेंड्स विल डू, आवर नेबर्स विल डू, बट आवर गॉड विल नेवर बिट्रे अस. ही विल नेवर हेट अस. ही विल नेवर एनवी अस. ही विल always lift us up. He will not leave us or forsake us, no matter what. बीमारी में हमारे साथ परमेश्वर है, अच्छाई में हमारे साथ परमेश्वर है. और हम जब काम करते, मेहनत करते हैं, लेकिन हम यही चाहते हैं कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, हमारे दिल में कोई कपट हो, कोई एनवी हो, कोई कमज़ोर हो, उसे निकाल कर अपने प्रेम से भर दे. और तभी हम परमेश्वर के रास्ते पे चल सकते हैं. आमीन. होली कम्युनियन हम लेंगे.